I mean, with Palak and her work, she got a very good talent and she had done a good job. We are very happy on that. And thanks for her patience also, we have done a lot of changes and she gave a lot of options to us. We made many changes in our options also. Then she again tried to do modification and all. Then she made a good job there. And yeah, it was really fun working with her. A great, good team all together. All are very professional. The carpenter and the painter, all team members were very professional and very good at work. So that was really nice and fun. Outcome is like what Yeah. you Outcome is really nice. We enjoy this. In all my detailing what she have done. So that is a really nice work. Anything. And the other thing that There were a lot of options that we got confused sometimes, Yeah, but it was I think it was really helpful from Palak's side. She made us make a decision easy for us. and she took all the changes on the fly, really with like lot of patience, which we would like to appreciate that. And the ideas that we got, especially with the master bedroom and the common wash like area that we have built up, that has really been, I think it has been helpful, because the master bedroom idea that Palak gave us by shifting the wardrobe from one wall to the other, that actually has given us lot of space in the room. And like from a mobility point of view also, it is like it looks spacious now. That really one point which is really appreciable, and yeah. Yeah, that. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Palak, I'm an interior designer. So if you follow us, you know that we are into interior designing. So today I'm going to show you one new project which we have just handed over, which is in Megapolis, Pune. So this is a 3 BHK, and we have done everything over here, from the execution to the designing. For this project, it's very special project for us, to be honest, because of the client itself. So the benefit over here was the client was very clear about each and everything they wanted, and they gave us the freedom to explore, to design, to come up with new ideas. एंड जैसे ही हम कोई भी नए आइडियाज़ या सजेशंस उनके सामने रखते थे, दे वर सो क्विक इन फाइनलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे हैड दैट ट्रस्ट इन अस. एंड आई कैन शो यू दैट बिकॉज दे हैड दैट ट्रस्ट, वी हैड done the project in much better way. So we have handed over this project in 2.5 months totally, and the experience was too good. So thank you Divya and Jaydev for trusting us, and let me show you now how we have designed and executed this space. This is the main entrance. Let me show you the 3D of here. So this is the safety door. So as you know, हमारे सारे projects में we try to go for some colors for the safety doors, because जो brown और white होता है वो बहुत ही common हो गया है. And I always like कि आपके घर की जो first impression हो, it has to be little colorful, right? So what we have done over here is कि हम यहाँ पे antique blue color में गए हुए हैं. हमने ये एक आर्क बनाया हुआ है, और अंदर का जो CNC कट ग्रिल लिया है वो भी सेम पैटर्न में लिया हुआ है. एंड देन वी हैव वेरी नाइस एंटिक हैंडल ओवर हियर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने पैनलिंग किया है, एंड वी हैव केप्ट अ स्पॉटलाइट ओवर देयर. और ये जो हमारी सेफ्टी डोर की पैटर्न है उसको हमने कंटिन्यू किया है इन द मेन डोर ऑल्सो. वी हैव चेंज द सेफ्टी डोर एंड मेन डोर, एंड वी हैव मेड इट फ्रॉम द स्क्रैच. यहाँ का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, आपको अंदर का जो विजन है वो पार्शियली, हमारा जो डिज़ाइन है मिरर वाला, वो बहुत ही अच्छे से दिखता है. ऑन द अदर साइड वी हैव दिस ह्यूज शू रैक. नीचे का जो पोर्शन है वो
you जो हमने 3D इसका कंसेप्ट बनाया था, how it was. So when you enter in the house, this is the first impression which you get. This is the vestibule. और जैसे ही आप मेन डोर से अंदर आते हो, जो फर्स्ट विजन जो आपका रहता है वो ये कॉन्सोल एंड दिस वेरी नाइस सीलिंग टच मिरर विच वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर. एंड जैसे ही आप फर्स्ट इंप्रेशन में आपका ये मिरर आता है विद द ब्रॉन्ज इफेक्ट, डेफिनेटली इट गिव्स यू वेरी एलिगेंट लुक. यहाँ पे वी हैव गॉन फॉर दिस चैम्फर्ड डिज़ाइनर मिरर. हमने यहाँ पे 2 कंसोल ड्रॉवर्स दे दिए हैं सो दैट जो आपका रूटीन चीज़ें हैं वो रख पाओ. एंड देन वी हैव प्लेस दिस वेरी नाइस गणपति आइडल ओवर हियर. ऑन द वॉल हमने ये एंटीक वॉल लाइट्स रखी हुई है विच गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू द एंटायर वॉल. फॉर द सीलिंग हमने वॉलपेपर किया हुआ है विच इज़ कस्टमाइज वॉलपेपर, और उसके ऊपर हमने एक सरफेस लाइट लगाई है विच कॉम्प्लीमेंट्स द वुडन वॉलपेपर एंड दिस मिरर अ लॉट. सो एज यू कैन सी, जो हमारा 3D में वॉलपेपर था, जो हमारा बिगिनिंग स्टेज में रहता है डिज़ाइनिंग, और ये जो वॉलपेपर एक्चुअली अप्लाई करने का स्टेज आता है वो लास्ट में आता है. सो इट्स लुकिंग एग्जैक्टली द सेम बिकॉज वॉट वी हैव डन ओवर हियर इज़ कि जो हमने वॉलपेपर की डिज़ाइन होती है, जो 3D प्रपोज करते हैं हम क्लाइंट को, वो पूरा लुक आता है उससे, और उसी वजह से 3D अप्रूव भी होता है. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज़ कि हमने कस्टमाइज वॉलपेपर कर दिया है सो दैट जो 3D हमने प्रपोज किया था उससे एग्जैक्टली हमारा जो एक्चुअल आउटकम हो वो मैच हो सके. सो दिस इज़ द कस्टमाइज वॉलपेपर विच वी हैव अप्लाइड ऑन द सीलिंग. सो वी हैव फर्स्ट मेड अ वुडन सीलिंग और उसके ऊपर हमने ये वॉलपेपर अप्लाई किया हुआ है. सो दिस इज़ द एंटायर लुक ऑफ दिस वेस्टिब्यूल. So we also have a storage here in the vestibule. So when you shut we have a TV unit design. So we wanted a very contemporary and slick TV unit. We have placed this big TV over here which has a panel back side. पैनल का रीज़न वही होता है कि आपके जितने भी वायर्स है वो सारे अच्छे से आपके हिडन रहते हैं एंड यू ऑल्सो गेट दिस वॉल्यूम. सो उसकी वजह से जो टीवी का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा आ जाता है. देन दिस इज़ द मार्बल फिनिश लैमिनेट ऑन द बैक पैनल. वी हैव ऑल्सो पुट वन golden strip over here. As you can see, there are the vertical golden strips over here which also gives a nice hint of golden finish. नीचे हमने टीवी यूनिट ले लिया है जिसमें स्टोरेज है एंड वी ऑल्सो हैव दिस ओपन स्पेस सो दैट इफ दे वांट टू कीप द डिश टीवी और एनीथिंग एल्स दे कैन कीप इन द ओपन स्पेस. सो ये जो टीवी यूनिट है वो पूरा हमने हैंडललेस किया हुआ है एंड दिस आर द शटर्स with the soft close. Next to the TV unit we have this very nice reading corner over here. So there is a chair which is extremely comfortable and on top of that हमने 2 shelf लगा दिए हैं so that can be used as artifact shelf also and they can also keep some books for the reading purpose. And this space looks wholesome with this chair over here because the color contrast also goes very nice with the entire accent wall which we have over here. Now next to that we have this
sitting. So we have this very nice and comfortable 3+1 seater over here, and this one seater is a rocking cum recliner chair. Design it in the 3D. So this is the dining area. हमने जो लिविंग एंड डाइनिंग का डिज़ाइनिंग किया है, और थॉट वाज कि हमें जो लिविंग एरिया साइड है उसको थोड़ा सा कोजी बनाना था, तो उसमें वी हैव यूज सम वुडन कलर्स एंड मोर लाइट्स एंड ऑल. एट द सेम टाइम जो डाइनिंग एरिया साइड है उसको हमें थोड़ा ब्राइट रखना था, तो ये जो हमारी एक्सेंट वॉल है उसको हमने ऑफ वाइट शेड में लिया हुआ है. When you enter from the vestibule in the living area, this is the wall जो आपका फोकस लेता है, तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करने का ट्राई किया है. We have customized this wall clock from Priyanka. I can share the link below in the description box. You can check her handmade products over there. So this is the huge wall clock, resin wall clock, which we have customized, and then we have kept this wooden molding over here, and this very slick golden finish antique lights. Now we have this crockery unit cum service table over here. यहाँ पे हमने टॉप में ग्रेनाइट ले लिया है सो दैट वो रफ एंड टफ यूज़ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड दे कैन मेंटेन इट वेरी इजीली. एंड ओवर हियर वी हैव द शटर्स. सो ये शटर्स की जो डिटेल है, हमने हैंडललेस गए हुए हैं ये शटर्स के लिए, बट और एक जो डिटेल है इसका जो कर्व है उसको हमने चैम्फर्ड फिनिश किया हुआ है. सो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक ऑल्सो, एंड दिस ऑल आर द सॉफ्ट क्लोज. यहाँ पे वी हैव द डाइनिंग टेबल, and on this wall, this is our favorite corner of this dining area. We have this very classic and antique wallpaper. Again, this is also customized wallpaper, and this goes so nice with the entire theme, and it's connecting nice with the dining and living area also. So this is the antique wallpaper. Over here we have a balcony outside. So we have this nice sheer and solid curtains. सो जो सॉलिड कर्टेंस है उसको हमने बेज में लिया हुआ है, एंड वी हैव द शेयर कर्टेंस विच इज़ इन द वाइट शेड विच लुक्स वेरी नाइस एंड एलिगेंट बिकॉज दे हैव वेरी एरी एंड सनी रूम. यहाँ पे जो व्यू है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. सो इफ़ यू हैव जस्ट दिस शेयर कर्टेन, इट ऑल्सो अलाउज सन रेज टू कम इन साइड द हाउस एंड ऑल्सो गिव्स यू वेरी नाइस लुक. यहाँ की जो सीलिंग है उसमें हमने बहुत हैवी सीलिंग नहीं किया है, बट वी हैव डन सम कंटेम्प्रेरी सीलिंग ओवर हियर. बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्लेड विद द लाइट्स. सो ये सारी जो लाइट्स है वो 3-in-1 लाइट्स ली है, सो दैट दे कैन यूज इट एंड एडजस्ट इट एज पर द मूड दे हैव. इफ दे आर वॉचिंग टीवी दे कैन गो फॉर द वार्म वाइट. इफ दे आर हैविंग डिनर ओवर हियर दे कैन गो फॉर द वाइट लाइट्स. So this is the contemporary and slick ceiling design which we have provided over here. Now let me show you the kitchen area. So this is the entire white modular kitchen. यहाँ पे L shape का kitchen है, and the kitchen space is also very huge. नीचे पूरा modular storage है. We have this light below this slab over here, and जो overhead है यहाँ पे 2 frosted glass वाले overhead है, and then we have the hob and the chimney over here. ऊपर भी सेम जो नीचे का L शेप का मॉड्यूलर स्टोरेज है उसी पैटर्न में हमने ऊपर लॉफ्ट भी किया हुआ है, एंड इट्स एंटायरली वाइट किचन, एंड विद द बैक स्प्लैश इज द मार्बल फिनिश, एंड देन वी हैव ऑल दिस स्टोरेज ओवर हियर. Other side we have the refrigerator space, and then we have this electronic hub unit over here which has our OTG microwave and other storage. Now let me show you the common passage, how we have treated, and we have done some civil changes over there. This is the passage towards the master bedroom and the kids bedroom. यहाँ passage में we have this very nice glass hanging light which is also a shadow light. तो बाकी वाली जो wall है उसके ऊपर it is giving a very nice shadow also. And the common like wash
washing area that we have built, that also is like Palak's idea. We had only a small wash basin in our mind, but she gave us this idea, like we can just push the wall inside and we can get a washing area, so that it won't create an obstacle on the way, and it won't be like a hindrance in the passageway. Yeah. So that is something. These are like some of the highlights. That was really come out really well, Yeah. and we didn't expect it. And that outside tiles and the inside tiles, it was some combination which we did, but that was really well done in the end. If I'll show you the video before we did this designing, ये जो part है वो washroom का part था, and this wall was getting continued till here. What we wanted was कि जब भी गेस्ट आते हैं, so they did not wanted कि bedrooms का जो washroom है वो यूज़ करने जाना पड़े just for the hand wash. So we created this space जो कि dining से भी नज़दीक है, and we can use as a common wash area. We kept this wash basin and the storage over here, और यहाँ पे हमने ये tiling work किया. Should not be that childish, because the kids are like, the kid is growing up, so his interest, his taste would also be like changing with every year. और एक मस्ट चीज़ जो उनको उनके रूम में चाहिए थी, दैट वाज द वर्ल्ड मैप. सो लेट मी शो यू ये सारे इनपुट्स को कंबाइन करके हमने कैसे ये पूरे रूम को डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट किया हुआ है. फॉर दिस किड्स बेडरूम लेआउट हमारे पास बहुत अच्छी खासी जगह थी, सो वी वर नॉट इन एनी काइंड ऑफ स्पेस क्रंच. जब भी हम किड्स बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट अवर क्लाइंट इफ़ पॉसिबल देन लेट्स गो फॉर द कॉर्नर बेड. रीज़न बीइंग whenever we are designing this room, हम ये ट्राई करते हैं कि जितना हो सके वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पेस फॉर द किड. जैसे कि अगर हमने ये बेड सेंटर में ले लिया होता तो डेफिनेटली वी हैव टू कीप मिनिमम 2 feet स्पेस ओवर अदर साइड ऑफ द बेड, जस्ट ताकि वहाँ से बेड से उतर के एक पैसेज मिल जाए. बट बिकॉज ऑफ दैट ये जो इतना अच्छा खासा 5 feet तक का हमें पैसेज मिल रहा है वो हाफ हो जाता है, एंड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर द किड. बिकॉज बच्चों का ये होता है कि उनको नीचे बैठ के प्रोजेक्ट बनाना है, या दे वॉन्ट टू जस्ट प्ले विद देयर टॉयज एंड ऑल. दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ द स्पेस इन देयर स्पेसिफिक रूम. सो यहाँ पे हमने किड्स बेडरूम के लिए हमने कॉर्नर बेड लिया हुआ है. वी हैव गॉन फॉर दिस वेरी नाइस ग्रेइश ब्लू टिंट फॉर द बेड, एंड उसका जो हेडबोर्ड है उसको हमने लेदराइट हेडबोर्ड किया हुआ है. सो दिस इज़ द मटेरियल जिस पे पानी है, कलर है वगैरह कुछ भी अगर गिरा है तो ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, एंड दे कैन ईजिली क्लीन इट. एंड दिस फिनिशिंग लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ओवर हियर, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्स दिस बेड का जो नीचे का लुक है और कलर है उसके साथ. वी हैव गॉन फॉर द ट्रॉली स्टोरेज फॉर द बेड. रीज़न बीइंग जैसे दूसरे रूमों में हमने हाइड्रोलिक स्टोरेज लिया हुआ होता है, बिकॉज वो जो हाइड्रोलिक स्टोरेज है वो हम लोग यूज़ करते हैं. फॉर स्पेसिफिक किड्स बेडरूम इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ट्रॉली स्टोरेज करो. रीज़न बीइंग कि ये जो पूरा 6 by 6.5 का एरिया है वो बच्चा खुद अपनी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकता है और वो अपने आप एक्सेस कर सकता है, एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम. अदरवाइज वी एंड अप पुटिंग अवर स्टफ
ओनली इन दिस एरिया, और इतना बड़ा जो उनका स्पेसिफिक स्टोरेज है वो रूम में कम हो जाता है. एंड इन किड्स बेडरूम वी हैव सो मैनी थिंग्स टू स्टोर, जैसे उनका टॉयज़ हो जाता है, स्टेशनरी हो जाती है, स्कूल की चीज़ें हो जाती है, उनके क्लासेस चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इफ़ यू गेट दिस मच ऑफ स्टोरेज बहुत ऑर्गेनाइजली आप रख सकते हो. Over here we have given the golden handle. For this trolley we have divided this trolley in two parts, as you can see, and when you open it you get such huge storage over here, and it's very easy for a kid also to access. और जो एक्स्ट्रा वाला पीछे वाला स्टोरेज होता है वो अपलिफ्टेड स्टोरेज हम दे देते हैं, विच यू कैन यूज़ फॉर द रेयर स्टोरेज जो आपको वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर ऐसे ही स्टोर करना है. नाउ ऑन द एंड ऑफ द बेड वी हैव दिस साइड स्टोरेज. यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉनिकल पैनल ले लिया है. ओवर हियर वी हैव नॉट पुट एनी हैंडल और नॉब्स, सो दैट वो जब भी उतर रहे हैं या खेल रहे हैं तो उनको लगे नहीं. हियर वी हैव प्रोवाइडेड पुश मैग्नेट स्टोरेज. The accent wall of this room is my favorite in this entire home. So this is the accent wall. As you can see, हमने पूरी जो बेड बैक वॉल है उसके ऊपर ये वॉल मैप का वॉलपेपर लगाया हुआ है. दिस इज़ द कस्टमाइज वॉलपेपर, क्योंकि हमने रेडी काफ़ी वॉलपेपर्स देखे ये सेम थीम में, पर हमें जो एग्जैक्ट लुक चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. सो स्पेसिफिकली वी हैव यूज मैनी कलर्स इन द रूम, और यहाँ पे वॉलपेपर में भी सेल्फ कलर्स काफ़ी है. सो जो बैक कलर है वो हमें प्रॉपर वाइट कलर चाहिए था, सो दैट रूम डल ना लगे एंड इट शुड ऑल्सो लुक ब्राइट एट द सेम टाइम. सो ये पूरा हमने कस्टमाइज वॉलपेपर बनाया हुआ है ऑन द बेड बैक वॉल. फॉर द पेंट ऑफ दिस रूम हमने जो ग्रे कलर है उसका ही एक शेड लिया है. हमने यहाँ पे वाइट कलर नहीं किया है, बिकॉज जो बाकी कलर हमने यूज़ किए हैं उसके साथ अगर हम प्योर वाइट में जाते तो वो अच्छा नहीं लगता. तो हमने ये जो एक कलर सिलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ वेरी माइल्ड, बट एट द सेम टाइम इट कॉम्प्लीमेंट्स द अदर कलर विच वी हैव यूज्ड इन दिस स्पेस. जनरली हम पूरे घर की जो सीलिंग डिज़ाइन करते हैं और लाइट्स लेते हैं उसमें हम 3-in-1 लाइट्स में जाते हैं. फॉर द किड्स बेडरूम स्पेसिफिकली आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सिर्फ वाइट लाइट में जाइए, बिकॉज किड कैन नॉट एडजस्ट ऑल 4 लाइट्स ऑन द सेम कलर. तो ये हो जाता है कि 2 लाइट वाइट पे है, 2 लाइट येलो पे है, और उसमें अगर वो रीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनकी आइज पे स्ट्रेन जाता है. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने चारों लाइट वाइट टोन में ही लिया हुआ है. नाउ लेट मी शो यू द फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस रूम. So this is the cozy reading corner. As you can see, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा स्पेशियस एक कोजी कॉर्नर बनाया हुआ है. यहाँ पे we have put some nice colorful frames, और नीचे की तरफ हमने ओपन स्टोरेज दिया हुआ है so that बहुत सारी उनकी जो बुक्स वगैरह है वो अच्छे से स्टोर हो जाए. इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और बेज कलर जो है उसमें लिया हुआ है. एंड देन वी हैव केप्ट सम लूज pillows over here. So this is the cozy corner for the kid to study and have fun. Next to the cozy corner we have this huge study table for him. So now we have this openable shutters over here which are soft close and handle less. यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल लाइट लगा दी है, and this is also openable shutter storage with the soft close over here. यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं विद दिस वेरी क्यूट गोल्डन नॉब्स, एंड दिस इज द स्टडी कम द रीडिंग कॉर्नर. Let me show you the wardrobe over here. This is from where you enter in the kids bedroom. We have provided this open unit over here. जैसे आपको अभी दिख रहा है कि कितनी अच्छे से they can put their open things over here. जो भी बच्चे को चाहिए, जो चीज़ हैंडी होती है, they can just display over here और store over here. एंड यहाँ पे हमने पीछे स्पॉटलाइट्स लगा दी है, सो व्हेन द एंटायर रूम लाइट्स आर ऑफ इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ नाइट लैम्प फॉर देम. और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ जाती है व्हेन यू कैन सी दिस जस्ट टॉयज ओवर हियर फॉर अ किड. इट्स लाइक अ वेरी कूल थिंग, आई कैन से दैट. नाउ टू गोइंग टूवर्ड्स द फंक्शनल थिंग, ये जो स्विच बोर्ड है वो पहले वॉल पे था. सो हमें जब ये पूरा वॉल टू वॉल स्टोरेज करना होता है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज कि स्विच बोर्ड को कहाँ रखेंगे. ये वॉल पे रख नहीं सकते बिकॉज डोर यहाँ पे ओपन होता है. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज़ कि यहाँ वाला स्विच बोर्ड हमने यहाँ पे सरफेस पे ले लिया है, सो दैट इट्स वेरी कन्वीनियंट व्हेन यू एंटर यू कैन जस्ट ऑपरेट दिस. और इसका जो सरफेस बोर्ड है वो भी अंदर हाइड हो जाता है, सो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट द थिंग कमिंग आउट फ्रॉम द बैक साइड. एंड इट गोज विद द थीम बिकॉज हमने जो इंटरनल लैमिनेट है उसके ऊपर वही अप्लाई कर दिया है.
देन द मेन वार्डरोब जो है उसको हमने ग्रीन थीम में लिया हुआ है और उसके ऊपर वी हैव फिक्स दिस वेरी क्लासिक एंड स्टाइलिश गोल्ड हैंडल्स एंड देन वी हैव ओपनेबल लॉफ्ट फ्रॉम हमने यहाँ का 3D कंसेप्ट डिज़ाइन किया था वो कैसा लग रहा है। The master bedroom idea that Palak gave us while shifting the wardrobe from one wall to the other, that actually has given us lot of space in the room, and like from a mobility point of view also it is like it looks spacious now. सो ये जो डिज़ाइन हमने किया है उसमें हमने कंटेम्प्ररी डिज़ाइन किया है और जो कलर पैलेट है उसको हमने वुडन और मस्टर्ड येलो पैलेट वाला सिलेक्ट किया हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक किंग साइज बेड है, यहाँ पे एक विंडो है, सो वहाँ पे हमने ब्लाइंड्स लिया हुआ है और पीछे हमने लेदराइट हेडबोर्ड लिया है। टू कॉम्प्लीमेंट द हेडबोर्ड हमने यहाँ वाली जो वॉल है उसको एक्सेंट वॉल किया है एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस वॉलपेपर ऑन द एंटायर बेड बैक वॉल। सो इसमें हमने थोड़ा सा अलग कलर लिया हुआ है। फर्स्ट वी विल लाइक कि यहाँ पे और एक कलर ऐड करे कि नहीं करे, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस वॉलपेपर with the wood and with mustard yellow, it is going really nice and we all are very happy after seeing the final outcome of this room. So this is the bed back wall. बेड के दोनों बाजू हमने 2 साइड टेबल्स लिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमने ज़्यादा हैवी स्टोरेज नहीं किया है बिकॉज हमें ये पैसेज काफ़ी ओपन चाहिए था एंड ऑल ओवर आपने ये घर का जो पूरा डिज़ाइन देखा है उसमें वी हैव ट्राइड कि जितनी ओपन स्पेस मिले वैसा किया है। एक्चुअली ये जो लोकेशन है ये घर का, वहाँ पे नेचुरल लाइट भी बहुत अच्छी आती है एंड द स्पेस विच वी हैव इन द रूम इज़ वेरी गुड। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस नहीं थी, हम चाहते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी स्टोरेज भी कर सकते थे, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी वही थी कि जितना हो सके उतना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन करना है। तो जो साइड ड्रॉवर्स है वो हमने हैंडललेस लिया हुआ है, यू कैन जस्ट ओपन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्रॉवर। जो हेडबोर्ड है वो हेडबोर्ड को हमने कंटिन्यू किया है टिल द साइड ड्रॉवर सो दैट वो एक काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लुक दे देता है। अगर हम वो हेडबोर्ड को यहाँ पे बेड जो है वहीं से अगर कट कर लेते तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है जितना यहाँ साइड टेबल के एंड तक लाके वो दे रहा है। सो दिस इज़ द हेडबोर्ड एंड द साइड टेबल यूनिट। Now let me show you how we have designed the other side of the bed, that is TV unit and study table. सो नाउ लेट मी शो यू द टीवी वॉल। ये हमारी टीवी वॉल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मस्टर्ड येलो एंड वुडन थीम का पैलेट लिया है पूरा यहाँ पे। ये जो वॉल है उसको हमने पेंट किया है ऑरेंजिश मस्टर्ड शेड में और यहाँ पे हमने बहुत ही स्लिक और बहुत कंटेम्प्रेरी टीवी यूनिट लिया है। सो ये पैनलिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि जो टीवी के जितने भी वायर्स वगैरह है एक तो वो हाइड हो जाते हैं और दूसरा जब भी हम ऐसा कोई पैनलिंग करते हैं उसकी वजह से वॉल बहुत ही अच्छे से उठ के आ जाती है उसके ऊपर। यहाँ पे हमने वुडन फिनिश नेचुरल लैमिनेट लिया हुआ है एंड एज यू कैन सी नीचे हमने एक छोटा सा 3 इंच का एक शेल्फ यहाँ के कंटिन्यूएशन में बाहर निकाला हुआ है। सो अगर ये सिर्फ हमने ये पैनल ही लिया होता और ये नहीं देते तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, वो साइड यूनिट्स पे या बेड पे अनऑर्गेनाइज रहता है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे कैन कीप द स्मॉल आइटम्स ऑन द प्लेस। सेकेंडली व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर सच डिज़ाइन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की पैसेज है और पैसेज से यू आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टडी टेबल ऑल्सो एंड देयर इज अ ह्यूज बालकनी ओवर हियर। सो जो चीज़ें बाहर आ रही है उसका यू कैन सी दिस फिनिशिंग व्हाट वी हैव डन, दिस इज़ अ लैमिनेट फिनिश। जनरली क्लाइंट का और कई लोग हम पूछते हैं कि लैमिनेट फिनिश है तो हाउ यू गिव द सॉफ्ट एजेस, तो ये लैमिनेट फिनिश है और यहाँ पे एज यू कैन सी हमने काफ़ी सॉफ्ट एज कर दिया है। सो इसका जो डिटेल है उसमें हम ये करते हैं कि एक वुडन का पट्टी आता है, वी कट दिस इन द डायगोनल डायरेक्शन एंड देन हम वो जो वुड है उसको अंदर फिक्स करते हैं और उसके ऊपर जो भी उसका बाजू वाला फिनिश है
बीट लेमिनेट फिनिश और पेंट फिनिश, उसके ऊपर हम वो फिनिश कर लेते हैं सो दैट ये एज बहुत सॉफ्ट हो जाती है कभी भी, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ किड और ऐसे भी हम लोगों को भी आते जाते लगने का डर रहता है. सो दिस सॉफ्ट एजेस आर मस्ट इफ यू आर डूइंग एनी फर्नीचर विच इज कमिंग टूवर्ड्स द पैसेज. एज यू कैन सी ऑन द बेड ऑल्सो हमने काफ़ी डीप कर्व लिया हुआ है सो दैट आते जाते वो भी बेड का जो एज है वो पैर में लगे नहीं. So now on the corner we have this very contemporary and sleek working desk. हमें बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर नहीं चाहिए था एज आई मैंशन अर्लियर, तो हमने एक बहुत ही स्लिक वाला एक लेज दिया है फॉर द वर्किंग डेस्क. और सेम जो हमने टीवी यूनिट में आपको बताया कि हमने सॉफ्ट टच किया है बिकॉज यहाँ पे बालकनी है, आने जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे भी हमने सेम डिटेलिंग इम्प्लीमेंट की है. स्विच बोर्ड जब हमें एक्स्ट्रा लेना होता है तो वो सरफेस स्विच बोर्ड नहीं हो और कंसील हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पैनल बनाया हुआ है सो दैट ये स्विच बोर्ड का जो पीछे का सरफेस बोर्ड होता है वो अंदर कंसील हो जाए और सारे वायर्स हाइड हो जाए. नाउ दिस इज द ओवरहेड. सो जो भी उनकी बुक्स है, आर्टिफैक्ट्स है, एज यू कैन सी दे कैन कीप ओवर हियर एंड इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द यूनिट ओवर हियर बिकॉज सिर्फ अगर ये लेज होता तो इट वुड नॉट लुक सो नाइस जैसा कि अभी दिख रहा है. सो नाउ दिस इज द बालकनी डोर ओवर हियर. सो यहाँ पे हमने फुल हाइट कर्टेन लिए हुए हैं एंड ये जो कर्टेन है वो सेम हमने मैच किया है विद द कलर थीम ऑफ दिस बेडरूम. यहाँ पे बहुत ही बड़ी बालकनी है और बहुत अमेजिंग व्यू है. हमने जो कर्टेन है वो फुल हाइट कर्टेन्स लिए हुए हैं ऑन द स्लाइडर चैनल एंड दिस ऑल्सो वी हैव गॉन फॉर द सिमिलर पैलेट जो हमने पूरे रूम के लिए लिया हुआ है. दिस कॉम्प्लीमेंट्स द मस्टर्ड कलर पैलेट एंड वुडन कलर द मोस्ट बिकॉज ये होता है कि कर्टेन आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेता है विजुअली व्हेन यू एंटर इन द रूम बिकॉज ये साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेट वो 10 फीट बाय 10 फीट का साइज़ है. सो वेन एवर वी सिलेक्ट द कर्टेन वी मेक श्योर कि जो हमारा पूरा कंसेप्ट और थीम है उसके साथ डेफिनेटली वो जाना चाहिए, अदरवाइज वो पूरा लुक किल हो जाता है रूम का. सो दिस कर्टेन कॉम्प्लीमेंट्स द एंटायर रूम वेरी नाइसली एज यू कैन सी. नाउ लेट मी शो यू द wardrobe space. Idea that Palak gave us by shifting the wardrobe from one wall to the other, that actually has given us lot of space in the room, and like from a mobility point of view also it is like it looks spacious now. So when you enter from this master bedroom door, जो first thing आप notice करते हो वो ये this is the long mirror over here. So this is a part of the entire wardrobe. पर हमने यहाँ पे wardrobe को दो direction में divide कर दिया है. The front side is the normal wardrobe और जो side में हमने unit लिया है that is a dresser cum storage. तो यहाँ पे हमें जब ड्रेसर लोकेट करना था लेआउट में सो वी हैड मल्टीपल थॉट्स कि सामने वाली वॉल पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पहले स्टडी लिया है वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बेड के सामने जनरली मिरर अवॉइड करते हैं. सो फर्स्ट हमारा ये हो गया कि हम सामने वाली वॉल पे तो हम मिरर या ड्रेसर नहीं ले रहे हैं. सेकेंड वॉल जो था हमारे पास वो जहाँ पे हमने स्टडी किया वो था, बट वहाँ पे भी वही हो जा रहा था कि बेस्ट जो लोकेशन हमें स्टडी के लिए लग रहा था बिकॉज साइड में ये बड़ी सी ओपनिंग है सो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है. सो नाउ वी हैड दिस एरिया. यहाँ पे अगर हम सामने की तरफ मिरर ले लेते हैं, जो हमें एक थीम चाहिए था वुडन का वो हमारा ब्रेक हो रहा था. सो देन वेन एवर इवन यू आर गेटिंग रेडी तो ये था कि आपको पीछे बहुत अच्छी और लंबी जगह मिलनी चाहिए सो दैट यू कैन गो बैक एंड चेक द फुल रिफ्लेक्शन इन द मिरर. एंड सेकेंडली वो कहीं पे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सर्कुलेशन के लिए भी. सो फाइनली हमने यहाँ पे वो डिसाइड किया. सो इन दिस यूनिट हमने 1 फीट का ओपनेबल स्टोरेज कर दिया है फॉर द ड्रेसर. अंदर हमने ग्लास शेल्व्स लगा दिए हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन ऊपर हमने लॉफ्ट में भी 2 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया है. सामने की तरफ से वार्डरोब के ऊपर का लॉफ्ट है और जो ड्रेसर आ रहा है वहाँ पे ये साइड लॉफ्ट ले लिया है सो दैट फ्रंट में वो सिमेट्रिक हमारी मेंटेन रहे. दिस इज़ द प्रोफाइल हैंडल और यहाँ पे हमने पूरा मिरर ले लिया है. नाउ दिस इज़ द मेन वार्डरोब साइड. सो अगर आप यहाँ से देखते हो तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि यहाँ से हमने एक डिवीजन करके स्टोरेज अलग से लिया हुआ है. यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स ले लिए हैं. बीच में हमने एक लाइटर नेचुरल वुड का पैटर्न दिया हुआ है विच कॉम्प्लीमेंट्स द डार्क नेचुरल वुड वेरी नाइसली. जो हैंडल्स लिए हुए हैं वो भी हमने वुडन रस्टिक फिनिश वाले लिए हुए हैं विद दिस ब्लैक बॉर्डर. एंड ऊपर भी हमने ओपनेबल लॉफ्ट लिया हुआ है जहाँ पे सेम जो स्टाइल हमने नीचे हैंडल का लिया हुआ है वही कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है.
This is the master bedroom. Now let me take you in the guest room. This is the guest bedroom. Let me show you कि हमने 3D में इसको कैसे डिज़ाइन किया था. So यहाँ पे जो हमने मंदिर डिज़ाइन किया हुआ है, क्लाइंट का एक स्पेसिफिकेशन था. Like especially the puja unit, we had very specific like wooden textured like puja unit that we wanted to have, and the outcome is like we are very happy with whatever has come up. कि उनके नेटिव में जैसा मंदिर उन्होंने देखा हुआ है, वैसा ही टच उनको यहाँ वाले घर में भी चाहिए था. सो वी हैव क्रिएटेड दिस वुडन टेम्पल ओवर हियर. यहाँ पे हमने कार्विंग दिया हुआ है फॉर द विजन कि जब भी डोर बंद हो तभी भी आपको अंदर भगवान दिख सके. एंड वी हैव प्लेस दिस रॉड्स ओवर हियर. सो एज यू ओपन, ये डोर पूरा आपका ओपन हो जाता है, सो दैट दिवाली है या कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, सो 2-3 लोग यहाँ पे खड़े रह के पूजा करना चाहे तो भी पॉसिबल है. देन देर इज़ अ ह्यूज स्पेस फॉर द आइडल्स. यहाँ पे हमने एक ट्रे ले लिया है सो दैट जो भी उनको दिया बत्ती वगैरह करना है, प्रसाद करना है, तो उसके लिए ये ट्रे बहुत ही यूज़फुल रहता है. वी हैव गिवन द एंटीक गोल्ड नॉब्स ओवर हियर. देन देर इज़ अ ड्रॉवर फॉर द स्टोरेज. वी हैव क्रिएटेड 2 ड्रॉवर्स और नीचे 2 ओपनेबल शटर्स रखे हुए हैं. एंड वी हैव गिवन अ स्पॉटलाइट इनसाइड. तो जब भी ये पूरे रूम की लाइट बंद है एंड ओनली द स्पॉटलाइट इज ऑल्सो ऑन, तो आप जैसे ही गेस्ट रूम में एंटर होते हो यू कैन हैव अ वेरी नाइस विजन ऑफ द टेम्पल ओवर हियर. ऊपर हमने थोड़ा डोम स्ट्रक्चर दिया हुआ है विद द वुडन कॉर्निस. The color combination. Yeah, the and color all. combination, Yeah, especially it's- like we had very like we back and forth while choosing the colors. But finally, like whatever we have done, I believe as a teamwork, it has come up really well. So in this guest bedroom we have this wall as our accent wall. As you can see, यहाँ पे हमने 2 अलग अलग वॉलपेपर को मर्ज किया हुआ है. ये जो रूम है वहाँ की जो हमारी थीम है वो ब्राउन और ग्रे शेड पे है. वी वांटेड टू ऐड 1 पॉप कलर टू दिस रूम. तो हमने वो जो नीचे का पोर्शन होता है वहाँ पे हमने एक ब्लू कलर ऐड कर दिया है. टू कॉम्प्लीमेंट दिस ब्लू कलर हमने जो यहाँ की विंडो है उसका जो ब्लाइंड है उसमें सेम ब्लू कलर में गए हुए हैं. सो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी ब्राइट कलर टू द रूम, अगर वो एक जगह पे यूज़ करके उसको कोई एक कॉम्बिनेशन में नहीं लेते हैं तो इट लुक्स वेरी एब्रप्ट. तो उसको हमने यहाँ वाले रूम में ब्लाइंड में कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है. On the top we have gone for this very nice and textured abstract wallpaper. यहाँ पे हमने एक एंटीक वॉल लाइट ली हुई है which complements the entire wall very nicely and gives a very soothing look also. Now we have this sofa cum bed over here. As I mentioned, this is the guest bedroom. तो यहाँ पे हमें पूरी ओपन स्पेस चाहिए थी, जितना हो सके फ्री स्पेस चाहिए थी. बट वेन एवर दे हैव गेस्ट ओवर तो दे कैन यूज इट एज अ बेड ऑल्सो. एंड दिस लुक्स वेरी नाइस एंड स्लिक बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग द हैंडल ऑल्सो. तो ये बहुत मिनिमलिस्टिक लुक दे रहा है टू द एंटायर रूम. नाउ लेट मी शो यू द वॉर्डरोब साइड. ये हमारा जो वॉर्डरोब है गेस्ट रूम का वो वॉल टू वॉल है. इट्स अ ह्यूज वॉर्डरोब. इसका जो फिनिश है वो हमने फैब्रिक फिनिश में गए हैं एंड इट इज़ अ वेरी नाइस डिटेल इनसाइड. सो इतना बड़ा वॉर्डरोब है बट जो हमने लैमिनेट सिलेक्शन किया है वो इस तरीके से किया है कि वो बहुत लाउड नहीं लगे. सेकेंडली हमने जो वॉलपेपर भी सिलेक्ट किया है जो जैसे आपने देखा उसका भी बेस कलर जो है वो इसका 90% माइल्ड कर दिया है सो दैट व्हेन यू हैव दिस अराउंड 11 फीट लॉन्ग वॉर्डरोब तो वो बहुत हैवी ऑन आई नहीं आना चाहिए. एंड इट शुड ऑल्सो मर्ज विद द एंटायर फर्नीचर विच यू हैव इन द रूम. ये सारे ओपनेबल वॉर्डरोब्स है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव द ओपनेबल लॉफ्ट. फॉर दिस हैंडल्स we have gone for the SS and matte black finish and it's very slick, so it's also going well with the entire laminate finish over here. ये जो हमारा गेस्ट रूम है उसको हमने मल्टीपर्पज़ तरीके से भी यूज़ किया है. वी हैव अ पूजा, वी हैव अ सोफा कम बेड, वी हैव अ ह्यूज स्टोरेज ओवर हियर एंड ऑल्सो वी हैव अ वर्किंग डेस्क. हमने एक फोल्डिंग वर्किंग डेस्क ले लिया है सो दैट वेन एवर दे वॉन्ट टू यूज़ इट वो तभी ओपन हो पाए और परमानेंटली वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे रूम में. सो दिस इज़ अ फोल्डिंग वर्किंग डेस्क.
और इसकी जो साइज़ है वो भी हमने काफ़ी डिसेंट ले ली है. सो इफ़ दे वांट टू कीप अ लैपटॉप एंड बुक तो दोनों चीज़ें आ जाए. जब भी आप ऐसे वर्किंग डेस्क कोई भी बनाते हो तो गो फॉर मिनिमम ऑफ 2 फीट और 18 इंचज़ और जो लेंथ है वो मिनिमम 3 फीट. अदरवाइज ये हो जाता है यू कैन जस्ट कीप वन लैपटॉप, बट इफ़ यू हैव किड इन द हाउस या आपको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ करना है सो मिनिमम आपका ये साइज़ होना ज़रूरी हो जाता है. द सेम थिंग विच आई मैंशन इन द मास्टर बेडरूम, ये भी एक पैसेज है एंड व्हेन इट इज़ ओपन तो हमने ये ध्यान रखा है कि जो एजेस है वो उसकी स्मूथ हो और राउंड हो. सो सेम डिटेलिंग वी हैव डन ओवर हियर ऑल्सो. दिस इज़ द पैसेज यू एंटर फ्रॉम द लिविंग एरिया टू द गेस्ट रूम. यहाँ पे एंट्रेंस में हमने एक बड़ा सा मिरर दे दिया है बिकॉज यहाँ पे एक अलग से स्टोरेज और ड्रेसर की ज़रूरत नहीं थी. वी वॉन्टेड एज मच एज पॉसिबल स्टोरेज ओवर हियर. यहाँ पे हमने एक फुल मिरर ले लिया है सो दैट यू कैन यूटिलाइज एज अ ड्रेसर मिरर एज वेल. एंड व्हेन यू आर एंटरिंग यू हैव अ मिरर सो डेफिनेटली इट गिव्स अ इल्यूजन कि स्पेस